Hello guys, welcome back. Let's learn about conjunctions today. Let's start. तो गाइस कंजंक्शंस क्या है चलिए देखते हैं. कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेजेस और अदर वर्ड्स टुगेदर. कंजंक्शंस को हम एज अ सिंगल वर्ड या किसी पेयर में यूज़ करते हैं. वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज़ करे जाते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. वो सेंटेंस का मतलब नहीं बदलते हैं बल्कि उसको और मॉडिफाई करते हैं. Let's see few examples of conjunction. I like bread and butter. And हमारा conjunction हुआ. The frog lives in the water and on land. Again, and is the conjunction here. It joins the sentence together. Two clauses together. I know that she is intelligent. That is our conjunction here. वो बता रहा है कि वो लड़की intelligent है. Mohan is good but his brother is bad. But is the conjunction here. There are two types of conjunction. First is coordinating conjunction, second is subordinating conjunctions. Let's learn about coordinating conjunction. Coordinating conjunctions are the conjunctions by which the words or sentences of equal rank are joined together. मतलब एक श्रेणी या एक रैंक के जो वर्ड्स होते हैं उसको ज्वाइन करने का काम हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है. Let's see few examples of coordinating conjunction. He is poor but honest. But हमारा coordinating conjunction है. Poor और honest same rank के शब्द हैं. She writes rapidly and beautifully. मतलब वो लड़की जल्दी लिखती है और beautifully लिखती है. There are four types of coordinating conjunction. First is cumulative or copulative. Second is alternative or disjunctive. Third is adversative and fourth is illative. Let's see about cumulative conjunctions and also to, now, not, less than, as well as are few examples of copulative or cumulative conjunction. ये sentence में with और without pair use होते हैं. Let's see few examples. Sony is both beautiful and intelligent. Both and is the conjunction here. He as well as his brother is guilty. As well as is the conjunction here. She no less than her sister is intelligent. No less than is the conjunction here. यहाँ पे हमें पेयर वाइज या विदाउट पेयर में कंजंक्शन का यूजेस मिल रहा है सेंटेंस में. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन. ईदर और, नीदर नॉर और अदरवाइज एल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन. ये एज अ पेयर यूज होते हैं सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू और योर ब्रदर इज़ गिल्टी. यहाँ पे ईदर और दोनों का यूसेज मिल रहा है. नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी. नीदर एंड नॉर. मेक हैस्ट और यू विल मिस द ट्रेन. ऐसे हम यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस में पेयर वाइज. नेक्स्ट इज़ एडवर्सेटिव. इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंस में. बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स इन अ सेंटेंस. आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट. बट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है. ही इज़ वेरी पुअर स्टिल ही इज़ कॉन्टेंट. I had no money, nevertheless I held him. Nevertheless is the conjunction here, still is the conjunction here, but is the conjunction here. ये दो सेंटेंस को क्लॉजेस को जॉइन करते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज रिलेटिव. इसके एग्जांपल्स हैं देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली. रिलेटिव के एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी इसके एग्जांपल्स इन अ सेंटेंस. First, you have not obtained good marks, hence you cannot be admitted. Hence is the illative conjunction here. She did not work, so she failed. The days are long, for it is June. If you can identify the conjunctions, you can see hence, so,
फॉर आर यूज इन सेंटेंस टू जॉइन टू क्लॉजेस टुगेदर। अब हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हेल्प टू जॉइन वन इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज विथ अनदर डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट क्लॉज। मतलब एक कोऑर्डिनेट होगा, मेन होगा या सबॉर्डिनेट होगा, उसका सब पार्ट होगा। एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले दो क्लॉज को कंजंक्शन जोड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। We have six type of subordinating conjunction. First is time, second is place, third is cause or reason, fourth is result or effect, fifth is comparison, and sixth is concession or contrast. फर्स्ट इज़ टाइम कंजंक्शन। टाइम कंजंक्शन का प्रयोग हम समय का महत्व बताने के लिए करते हैं। जब टाइम का यूसेज आता है सेंटेंस में, तब हम टाइम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स है व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज लॉन्ग एज सून एज टिल, अंटिल। Let's see इसके examples in a sentence. I saw a man of two heads when I was walking. When is the conjunction? समय बता रहा है जब वो लड़का चल रहा था तब उसे ऐसा इंसान दिखा था। Second is my friend called on me while I was taking tea. While is the conjunction. While बता रहा है कि जब वो उसका दोस्त उसे कॉल कर रहा था तब वो चाय पी रहा था। तो समय बता रहा है ना यहाँ पर कि कब कहाँ क्या हो रहा था। नेक्स्ट इज़ प्लेस कंजंक्शन। इस कंजंक्शन का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है। जब कोई जगह का हम प्लेस का हम बताएं कि हमें इस जगह पर ये काम चाहिए या हो, तब हम प्लेस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर, वेंस, वेयर एवर। Let's see a few examples of place conjunction in a sentence. I know where he lives. Where is the conjunction here? That person know कि वो इंसान कहाँ रहता है। कहाँ is the place मतलब स्थान का usage. Go wherever you like. तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ. Wherever is the place here. She never told us when she had come. Whence is the conjunction here. उसने नहीं बताया कि वो कब आई थी। तो ये कब आई थी इज़ द प्लेस वेयर शी हैड कम। नेक्स्ट इज़ कॉज एंड रीज़न। इस कंजंक्शन का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है। मतलब हमें किसी चीज़ का जब रीज़न देना हो तब हम इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बिकॉज, सिंस एंड एज। Let's see cause and reason के examples in a sentence. I like her because she is laborious. Because is the conjunction. Reason बता रहा है कि उसे वो क्यों पसंद करता है। I will buy a car since my wife desires it. Since is the reason कि उसकी वाइफ उस चाहती है कि वो कार ले, इसीलिए वो कार खरीदेगा। नेक्स्ट इज़ रिज़ल्ट और इफ़ेक्ट। इस कंजंक्शन का यूज़ हम परिणाम बताने के लिए करते हैं। मतलब रिज़ल्ट बताने के लिए करते हैं। जब किसी रीज़न के बाद हमें रिज़ल्ट देना रहता है ना, तब हम इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। दैट, सो दैट, सच। मतलब सो दैट इज़ अ पेयर हियर रीज़न एंड इफेक्ट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ही वर्कड सो मच दैट ही फेल इल। सो मच दैट इज़ दी, सो दैट इज़ दी कंजंक्शन हियर। मतलब वो इतना काम किया कि वो बीमार पड़ गया। ही रैन सो स्लो दैट ही वॉज सो सून आउट ऑफ द रेस। मतलब वो इतना धीरे चला कि वो रेस से आउट हो गया। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन। इस कंजंक्शन का प्रयोग हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। मतलब तुलना करने के लिए करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एज मच एज दैट। ये हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। मतलब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ कंपेयर करना हो तब हम इसे यूज़ करते हैं। लेट्स सी कंपैरिजन एग्जाम्पल्स इन अ सेंटेंस। दिस नॉवल इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन। मतलब दो नॉवल की हम बात कर रहे हैं, वो भी इतनी इंटरेस्टिंग है जितनी वो नॉवल थी। शी इज़ नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर की तरह नोबल नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं दो सिस्टर्स को। विनीता इज़ टॉलर दैन श्वेता। हम विनीता और श्वेता को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन कितना टॉल है, कौन कितना कितना डिफरेंस है उन दोनों में। कंपैरिजन हो रहा है हाइट का यहाँ पर।
नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन। इस कंजंक्शन का हम विरोध या बोध करने के लिए करते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना हो या किसी चीज़ को प्रूव करना हो तब हम इस कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो, ऑल दो, हाउ एवर, इवन इफ, नॉट विथ स्टैंडिंग विद दैट। लेट्स सी इसके एग्जाम्पल्स इन अ सेंटेंस। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो दो ही इज़ वेरी रिच। मतलब हम यहाँ अगेंस्ट जा रहे हैं ना उस इंसान के कि वो है उतना ऑनेस्ट नहीं है जितना वो दिखाता है अपने आप को कि वो रिच है। यू कांट पास हाउ एवर हार्ड यू मे वर्क। मतलब हम यहाँ अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं ना इस इंसान को कि वो जितना भी हार्ड वर्क करे वो पास नहीं होने वाला। आई विल सपोर्ट यू इवन इफ आई एम इन ट्रबल। यहाँ पे प्रूव करा जा रहा है कि वो इंसान उसे सपोर्ट करेगा अगर वो ट्रबल में भी रहा तो।